So yes, hello everyone. We are going to solve some numericals from flow through pipes, which has been asked in the Astu previous year's paper. जैसे कि ये क्वेश्चन आपको सामने जो दिख रहा है ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन को समझते हैं एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट as soon as possible basically. आप लोगों को रिवीजन भी करना है, also hand out one of the notes for flow through pipes also. So see guys, there is a 40 meter long horizontal pipeline has one end attached to a water tank and the other end openly vents into space. Okay. The pipe diameter is 150 mm and for the first 25 meters of its length from the tank, the pipe's diameter is 150 mm for the first 25 meters of its length from the tank, and then it abruptly increases to 300 mm. Double हो जाता है diameter. The water level in the tank is 8 meters above the center of the pipe. Calculate the rate of flow considering all head losses that happen. Consider the pipe friction for both the parts. Pipe friction यानी कि friction factor नहीं बोला है, pipe friction बोला है guys. For both the pipes is equal to F is equal to 0.04 in the Darcy-Weisbach equation guys. तो क्या है हमारे पास Darcy-Weisbach equation क्या है? किसी को पता है? What is Darcy-Weisbach equation? Anyone? Sir, HL is equal to 4F dash LV square divided by D into 2G. 4 as LV square divided by D into 2G. This is diameter. This is the average flow velocity. And हमारे पास F dash जो है यहाँ पे coefficient of friction है. L is the length of the pipe. G is the acceleration due to gravity. This is what head loss when a liquid or when a fluid is flowing through a pipe. ठीक है. आप लोग को एक और हेड लॉस कराया गया था गाइस. जिशान तुम्हें मनत आसे सके तुम्हारा मनत आसे सके HR is equal to 32 mu U bar L by rho G D square. असले? Yes, sir. This is what? This is Hagen-Poiseuille's equation. ठीक है. अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत लोगों को शायद पता नहीं भी हो सकता. इफ आई माइट बी रॉन्ग, तो ये Hagen-Poiseuille's equation है. दिस इज, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ. दिस इज Hagen-Poiseuille's equation और दिस इज Darcy-Weisbach equation. दोनों में तो हेड लॉस है. डिफरेंस क्या है दोनों का? All of you? Anyone? Monkim, what do you think? What is the difference between these two? Darcy-Weisbach also gives us the value of head loss. Hagen-Poiseuille also gives us the value of head loss. Then what is the difference? Sir, এটাত mu use কৰো, এটাত F use কৰো. মানে কি? Sir, এটাত হেৰি coefficient of friction use কৰো. Yes, in Darcy-Weisbach equation, this takes into consideration the solid friction. And since here we have mu, which is dynamic viscosity, we talk about fluid friction. And Hagen-Poiseuille's equation is used for laminar flow only. तो जब फ्लो लैमिनार हो रहा होगा तो उसमें लैमिनार फ्लो में फ्लूइड का विस्कोसिटी को कंसीडर करते हुए जो लॉसेस आएगा, that is known as head loss due to the fluid's own viscosity. Because when if the real fluid is flowing through a pipe or a surface, whatever, then the fluid will experience some sort of resistance. The fluid will have certain resistance in its flow because of its own inherent property of what? Viscosity. तो हेड लॉस वहां पे 32 म्यू यू बार एल बाय रो जी डी स्क्वायर. ये दूसरा कहानी है. अभी जब फ्लो थ्रू पाइप के बारे में बात करें और यहाँ पे आपको मेंशन है Darcy-Weisbach इक्वेशन, वी विल यूज दिस. हियर वी हैव एफ डैश. इसको एफ डैश लिख के चलने से ज्यादा अच्छा है. एफ डैश मेंशन्ड है 0.04. ठीक है. अब तो एफ डैश क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो Darcy-Weisbach इक्वेशन जो हम लोग ऐसे लिखते हैं 4f डैश एल वी स्क्वायर by d into 2g. This is head loss. Again we also write down one type of head loss is 4f dash को f mention कर दिया, f l v square by d into 2g. तो ये f जो है this is called friction factor. Friction factor. Friction factor f is equal to 4 into coefficient of friction. इसको बोलते हैं modified Darcy-Weisbach. This is modified Darcy-Weisbach equation. यहाँ पे हम लोग का Darcy-Weisbach equation को यूज करके करेंगे. देखो
अब क्या कहानी क्या है यहाँ पे, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ लॉसेस दैट वी हैव। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हेड है, ओवरहेड टैंक है, ओवरहेड टैंक बोला क्या, देयर इज अ टैंक, वाटर टैंक। ठीक है, तो एक वाटर टैंक है ऐसे करके, और उसमें पानी का जो हाइट है, जो हेड है, वो 8 मीटर है फ्रॉम द पाइप। तो यहाँ से क्या हो रहा है, द पाइप्स डायमीटर, द 40 मीटर लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पाइप हैज वन एंड अटैच्ड टू अ वाटर टैंक एंड द अदर एंड ओपनली वेंट्स इनटू स्पेस। यानी कि ये पाइप जो है एक तरफ टैंक से लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके 40 मीटर लॉन्ग है। लेकिन 40 मीटर लॉन्ग होने से क्या हुआ, इसमें 25 मीटर, फर्स्ट 25 मीटर जो है वो कितना डायमीटर का है, दैट इज द डायमीटर ऑफ 150 mm, फर्स्ट डायमीटर। सो पाइप नंबर वन, तो पाइप नंबर वन का डायमीटर आपको दिया हुआ है 150 mm। 25 मीटर के बाद ये चेंज हो जाता है guys। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 300 mm। तो 25 मीटर, फिर 40 मीटर करने के लिए कितना होना चाहिए, 15 मीटर होगा। सो दिस इज 15 मीटर। Am I clear all of you? So this is, what is it? This is length 1, this is length 2, और ये जाके क्या हो जा रहा है guys? This is opening into the space, बढ़ जा रहा है बाहर की तरफ, exit, this is the exit। यहाँ पे क्या हो रहा है, entry। Am I clear all of you guys so far? किसी को डाउट है, anyone? If there is any doubt, let me know so far। ये आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ये तो है first 25 meters and then it abruptly increased to 300 mm। The water level in the tank is this and second pipe जो है वो स्पेस में खुल जाता है, ठीक है, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है। तो L1 ये 25 मीटर का है, L2 जो है कितना है, दिस इज 15 मीटर, तभी जाके दोनों मिल के L1 प्लस L2 40 मीटर होगा, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 40 मीटर। अब यहाँ पे ये हाइट जो है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप, यहाँ से ये हाइट, टोटल हेड अवेलेबल था 8 मीटर। ठीक है भाई, अब हेड लॉस क्या क्या होगा गाइस, देखो, दो हेड लॉस तो पाइप का फ्रिक्शन की वजह से हो जाएगा। एक तो हो जाएगा 4F-L1 V1 बाई डी इंटू 2G। लेकिन आपको पूछा क्या है, यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट डिस्चार्ज, कितना डिस्चार्ज हो रहा होगा, कंसिडर द फ्लो रेट, मीटर क्यूब पर सेकंड में निकालना है आपको। तो 4F-L1 बाई D1 इंटू 2G। दूसरा क्या होगा, 4F-L2 V2 बाई D2 इंटू 2G। दोनों में डार्सी विस्बैच इक्वेशन लेके, दिस इज मेजर लॉसेस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ये पाइप 1 का है, ये पाइप 2 का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? Yes, sir. रेस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स, बिकॉज जिसान को क्लियर होगा ही, क्योंकि उसने Yes, sir. टारगेट एकेडमी का सारा वीडियोस देखा हुआ है एक्चुअली, तो उसमें सारा कुछ समझाया हुआ है एंटायरली। वो इफ यू नॉट इवन अटेंड दिस क्लास, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट फॉर श्योर। सो जो टारगेट के स्टूडेंट्स और जो मैंने फ्लो थ्रू पाइप्स का 12 या 13 लेक्चर था वो देखा होगा, तब तो वेरी गुड टू अंडरस्टैंड। मेजर लॉसेस ये रहा 4F-L2 V2 बाई D2 इंटू 2G। अब आता है अलग अलग लॉसेस, माइनर लॉसेस कहाँ कहाँ होगा। माइनर लॉसेस, पहला माइनर लॉस यहाँ होता है, ये होगा एंट्री लॉस। फिर दूसरा लॉस यहाँ होगा एक्सपेंशन लॉस, सडन एक्सपेंशन। और तीसरा लॉस यहाँ पे होगा एग्जिट लॉस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है दिशा, इज इट राइट? आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो माइनर लॉस, माइनर लॉस 1, माइनर लॉस 2, माइनर लॉस 3। तो माइनर लॉस, पहला लॉस जो होगा, दैट इज द लॉस ड्यू टू द एंट्री, ड्यू टू द एंट्री पे होगा guys, ठीक है। तो जब एंट्री होता है पाइप का, तब कितना होता है ऑल ऑफ यू, एंट्रेंस ऑफ द पाइप, तो पाइप में वेलोसिटी यहाँ पे V1 हो रहा होगा guys, ठीक है। तो जब भी एंट्री पे लॉस होता है ना, तो ये यहाँ से पहला लॉस है एंट्री लॉस, प्लस दूसरा लॉस है सडन एनलार्जमेंट, सडन एनलार्जमेंट लॉस। सब जगह एडी फ्रिक्शन होता है, एडी फॉर्मेशन होगा। जैसे कि पानी आया, पानी ऐसे फ्लो होगा guys, ये जगह पे लॉसेस हो रहा है। यहाँ पे पानी आया तो ये ऐसे फ्लो होगा पानी, तो यहाँ पे एडी विस्कोसिटी, यहाँ पे एडी
फॉर्मेशन होता है, बिकॉज ऑफ दिस देयर आर लॉसेस, टर्बुलेंस। सडन एनलार्जमेंट हो गया तो लॉस, उसके बाद एग्जिट करता है तो एग्जिट का लॉस भी आता है, ठीक है, एग्जिट लॉस। एंट्री लॉस जब होगा तो इसका वेलोसिटी कितना है, एंट्री हो रहा है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है, v1 है गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो एंट्रेंस ऑफ द पाइप पे एंट्रेंस ऑफ द पाइप जब हो रहा होगा एंट्री लॉस, तो दिस इज गिवन एज 0.5, इन दिस केस इट इज v1 स्क्वायर बाय 2g। ये आप लोगों को अभी मैं डिस्क्राइब पूरा अच्छा से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी डिस्क्राइब करूंगा तो सुबह हो जाएगा, और करते करते फिर क्या होगा कि डायरेक्टली एग्जाम देने जाना पड़ेगा। सो अभी समझ लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस क्या होता है। मैं आपको एक नोट्स बना के दे दूंगा कि इसमें अलग अलग लॉसेस क्या क्या होता है, और लॉसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या होता है। जैसे कि टैंक से अगर कभी भी पाइप में एंटर करता है तो एंट्री लॉस होता है। पाइप कभी भी पाइप जो होगा, इन दिस केस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये पाइप यहाँ पे सडनली एनलार्ज कर गया तो एनलार्जमेंट लॉस होगा। अगर ये बाहर दूसरा पाइप जाके अगर फिर से छोटा हो जाता, छोटा डायमीटर का, तब यहाँ पे होता सडन कंट्रैक्शन, तो कंट्रैक्शन का लॉस भी आता। तो सडन एनलार्जमेंट का लॉस क्या होगा, यहाँ से v1 आया, इसमें से v2 गया, पाइप नंबर में v2 होगा, v2 का वेलोसिटी कम होगा, क्यों, क्योंकि एरिया ज्यादा है, ठीक है, और ये पाइप सीरीज में देख लो, और यहाँ का वेलोसिटी कितना है v1। तो सडन एनलार्जमेंट होगा जब, तो एनलार्जमेंट लॉस क्या होता है गाइस, हाउ मच इट इज, जिशान मनो तो तुम्हारा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय 2g, दिस इज सडन एनलार्जमेंट लॉस। और जब एग्जिट हो रहा होगा, whenever there is an exit from the pipe, then again also क्या होगा guys, what will be the exit loss, anyone? सर 1 into v² by 2g। Yes, तो कौन सा v लेंगे, we'll take v2, है ना, तो we will यस take सर। v2, तो I'll take v2 square by 2g, this is exit loss। ये कितना लॉसेस हो गया, टोटल नंबर ऑफ लॉसेस कितना हुआ, हेड लॉस 1 2 3 4 5, 5 लॉस होगा। अब इसको लिखने का तरीका कैसे, टोटल हेड लॉस, जितना हेड अवेलेबल होगा उतने ही लॉसेस हो सकता है गैस, उससे ज्यादा लॉसेस नहीं होगा। तो टोटल हेड कितना अवेलेबल है, 8 मीटर का, है ना गैस, क्लियर है। तो हेड लॉस कितना होगा, पहला एंट्री पे लॉस है गैस 0.5 v1 स्क्वायर बाय 2g, प्लस एंट्री कर दिया, अब पाइप में फ्लो होना शुरू होगा, तो पाइप में जब फ्लो होगा तो उसमें डार्सी विस्बैच के हिसाब से मेजर लॉस आएगा, विच विल बी 4f डैश l1 v1 स्क्वायर बाय 2g, d1 इंटू 2g, सॉरी, प्लस अब जैसे ये पॉइंट 2 पहुंचा, यहाँ पे सडन एनलार्जमेंट हो गया, तो सेकंड लॉस क्या हो गया, v1 स्क्वायर, सॉरी, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय 2g। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, कोई डाउट होगा तो प्लीज बताना। सडन एनलार्जमेंट होने के बाद पाइप नंबर 2 में फ्लो करेगा, तो वहां पे मेजर लॉस होगा 4f डैश l2 v2 स्क्वायर बाय d2 इंटू 2g, प्लस v2 स्क्वायर, तो v2 का v2 ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 2g। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस इज द टोटल लॉस, एंड दिस टोटल लॉस विल बी, और हेड के टर्म्स में दिया हुआ तो मीटर के टर्म्स में लिख दो, तो 8 मीटर आपको दिया हुआ है यहाँ पे। टोटल हेड लॉस कितना होगा, हो सकता है मैक्सिमम, वाटर लेवल इन द टैंक इज 8 मीटर अबव द सेंटर ऑफ द पाइप, तो 8 वेट कर देंगे गाइस, इक्वेट करना पड़ेगा कोई चीज से आपको। तो लॉसेस यहाँ पे आया 8 मीटर, सारा कुछ स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में लिखना पड़ेगा आपको। अब आपको निकालना है क्यू का वैल्यू। अब क्यू का वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, छोटा सा जगह ले लेता हूँ, लेट मी सी इफ इट विल अलाउ मी और नॉट, ठीक है, यहाँ पे v2 स्क्वायर बाय 2g। अब एक और चीज आपको निकालना है, हेड फ्लो रेट क्यू। तो क्यू क्या होता है, इट इज a1 इंटू v1 ऑल्सो इक्वल टू a2 इंटू v2, बिकॉज ये सीरीज में लगा हुआ है तो डिस्चार्ज सेम होगा दोनों से, दोनों पाइप में डिस्चार्ज सेम होगा सीरीज कनेक्शन में। तो a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, फाइन, तो v1 कैन बी रिटन एज q बाय a1, और v2 कैन बी रिटन एज q बाय v2, q बाय a2, q बाय a2। और a1 यू कैन इजिली फाइंड आउट a1, बिकॉज a1 का डायमीटर 150 mm दिया हुआ था, देख लो, यानी कि पहला पाइप का डायमीटर 150 mm है, दूसरा पाइप का डायमीटर d2 300 mm है। तो a1 will be equal to pi into 0.15 square by 4, 0.15 square by 4, and a2 will be equal to pi into 0.3 square by 4। कहाँ पर है?
वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा आप यहाँ पे निकाल लो। A1 का वैल्यू निकाल लिया। अब क्या है, जहां जहां V1 है वहां वहां आप क्या करो, 0.5 इंटू V1 की जगह क्या करोगे, Q1 Q स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर। तो देखो तो Q बाई A1 का स्क्वायर बाई 2G प्लस 4, F का वैल्यू दिया हुआ है आपको, F डैश का वैल्यू दिया हुआ है 0.04, L का वैल्यू भी दिया हुआ है 25 मीटर है पहला वाला, दिस इज 25 मीटर और दिस इज L2 इज 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे L1 कर दोगे, V1 स्क्वायर की जगह क्या करोगे, फिर से Q बाई A1 का स्क्वायर करोगे डिवाइडेड बाई 2 इंटू G इंटू D1 क्या लिखोगे आप, D1 आप लिख दोगे 0.15 मीटर। V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो Q स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2G कॉमन ले लिया, आई विल हैव 1 बाई A1 स्क्वायर माइनस 1 बाई A2 स्क्वायर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, यहाँ से प्लस 4 इंटू एफ डैश एज इट इज L2 आपको 15 मीटर ले लेना है। V2 की जगह आप क्या लिखोगे, Q डिवाइडेड बाई A2 का स्क्वायर बाई D2 इंटू 2G, तो D2 0.3 इंटू 2G प्लस 2G सब जगह 2G है, और V2 स्क्वायर की जगह Q बाई A2 का स्क्वायर बाई 2G, तो 2G सब जगह कॉमन ले लो, तो 8 इंटू 2G इधर चला जाएगा। I'll be left with 0.5 Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर, Q स्क्वायर भी कॉमन ले लो, तो आई हैव Q स्क्वायर कॉमन आउट कर, बचा क्या 0.5, 2G तो चला गया, 0.5 डिवाइडेड बाई A1 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉमन ले लिया, 2G भी उधर चला गया, तो आई हैव दिस एज 4 इंटू 0.04, L1 का वैल्यू 25, और यहाँ पे आपके पास Q स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल ही लिया, नीचे A1 स्क्वायर हो जाएगा guys, तो आई हैव A1 स्क्वायर डाउन स्टेयर्स, नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर, तो Q स्क्वायर कॉमन निकाल ही लिया है, तो आई हैव A स्क्वायर, 2G भी इधर चला गया guys, तो 0.15 इंटू A1 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉमन निकाले, 2G भी चला गया, तो आई हैव 1 बाई A1 स्क्वायर माइनस 1 बाई A2 स्क्वायर फाइन प्लस 4 F dash is 0.04, L2 is 15, sorry, this is 15 divided by 0.3 into A2 का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाहर चला गया, 2G भी बाहर चला गया, 1 बाई क्या आ जाएगा A2 स्क्वायर। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? बस खाली क्या करो, यहाँ पे A1 A2 जो वैल्यू आया सब पुट करो, निकालो, 8 इंटू 2G से डिवाइड कर दो, ये सारा वैल्यू को नीचे ले जाओ, Q स्क्वायर आएगा, तो Q is equal to root under whatever you will get, that will be your answer. Am I clear all of you guys in this class? Yes or no? Yes. Yes, sir. सब किसी से पूछ रहा हूँ, इवन द नॉन टारगेट स्टूडेंट्स एंड अगर कोई नया स्टूडेंट आया है यहाँ पढ़ने तो अच्छा बात है। Anyone? Jyotirmay and all? Kaveri, is it clear to you? Aryan, clear? ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जगह ले लिया था समझाने के लिए, तो समझाने के लिए नोट देख लो एक बार, तो अंडरस्टैंड अ नोट, और हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग बाद में। हाँ, ठीक है, जब भी फ्लो थ्रू अ पाइप होता है, whenever there is a flow through a pipe, just a minute, whenever there will be a flow through a pipe, तो उसमें दो तरह का लॉसेस होता है guys, one is major loss and the other one is minor loss। माइनर लॉस याद करना पड़ेगा आपको एज ऑफ नाउ, नहीं तो अगर आपको प्रैक्टिस करते करते क्या होता था, याद हो जाता है। मेजर लॉस होता है, मेजर लॉस इज गिवन बाय डार्सी-विस्पैच इक्वेशन, दिस इज given by Darcy-Weisbach equation, which is given as HL. This is because of pipe friction. Darcy-Weisbach is just solely because of pipe friction. The HL is given as 4F dash LV square by D into 2G. ठीक है, मॉडिफाइड, अगर मॉडिफाइड फॉर्म में लिख दें तो 4F dash को आई कैन राइट डाउन F LV square by D into 2G. F is equal to 4F dash, 4 into coefficient of friction. F क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, F is
फ्रिक्शन फैक्टर एच एल का वैल्यू आ गया यहाँ से। फ्रिक्शन फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं जनरली 16/r ही, लेकिन अभी तक मैंने आप लोग को वास्तव में कोई क्वेश्चन ऐसा देखा नहीं है। जब गेट का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब देखा जाएगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है, गेट का जुलाई में आप लोग को पढ़ाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स अभी फिर से वापस। सो माइनर लॉस अलग अलग तरह का होगा। मेजर लॉस आराम से निकल जाएगा, चेसिस फार्मूला भी आता है इसमें, बट चेसिस फार्मूला का यूटिलाइजेशन आप लोग का वास्तव में मैंने देखा नहीं है अभी तक। तो माइनर लॉसेस अलग अलग तरीके से होगा। माइनर लॉसेस क्या क्या चीज की वजह से होगा? पहला माइनर लॉस है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। सडन एनलार्जमेंट होने से मतलब क्या हुआ कि एक पाइप आया और सडनली एनलार्ज होकर बड़ा डायमीटर का पाइप में चला गया। सो इन दैट केस हेड लॉस H1 या फिर H, चलो H1 लिख देता हूँ मैं। H1 इज इक्वल टू सडन एनलार्जमेंट होने की वजह से तो पाइप इसमें V1 हो रहा होगा, इसमें V2 फ्लो हो रहा होगा। V1 वुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन V2 फॉर श्योर, बिकॉज इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। So I'll have this one as V1 square minus V2 square by 2g. This is the sudden enlargement. Number two, then we will have इसका derivation भी मैंने किया हुआ है। If you pay attention, this derivation is also done in Target Academy में किया हुआ है guys, ठीक है। फिर आता है due to sudden contraction। due to sudden contraction। due to sudden contraction होने से क्या होगा? Anyone? जिसान मनो तसे किमान होगा sudden contraction होने? नहीं भी आता। सडन कंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? बड़ा डायमीटर ऐसा है, बड़ा पाइप से है और इसमें पाइप से दूसरा पाइप में चला गया गैस, छोटा हो गया पाइप। ठीक है, तो जो वेलोसिटी इधर है गैस, ये भी छोटा वाला पाइप है, V2 मान लिया इसको। इन दैट केस H2 विल बी इक्वल टू 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2g। 2g सब में आएगा, हाँ, 2g विल बी देयर इन ऑल ऑफ द हेड लॉस है ना। नंबर थ्री, सडन कॉन्ट्रैक्शन, सडन एनलार्जमेंट, सडन कॉन्ट्रैक्शन। फिर आता है एंट्रेंस, पाइप एंट्रेंस, एंट्रेंस ऑफ द पाइप। पाइप एंट्रेंस जब भी देखो, एंट्रेंस और सडन कॉन्ट्रैक्शन में एक डिफरेंस है। इसमें क्या होता है कि बड़ा पाइप से छोटे पाइप में ट्रेवल कर रहा है। एंट्रेंस ऑफ द पाइप क्या है कि टैंक से पाइप में एंटर हो, तो टैंक से जब पाइप में एंटर होगा तो इन दैट केस हेड लॉस विल बी इक्वल टू जो फ्लो हो रहा होगा V, दिस विल बी हाफ 5 स्क्वायर बाय 2g। नंबर फोर, फिर एग्जिट, एग्जिट ऑफ द पाइप। जब पाइप एग्जिट हो रहा होगा, एक आता है लास्ट वाला एग्जिट, लास्ट वाला हेड लॉस आता है जो पाइप बैंड की वजह से होता है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू एज ऑफ नाउ, सिविल इंजीनियर्स को जरूरत होते हैं। तो एग्जिट ऑफ द पाइप H4 इज इक्वल टू पाइप फ्लो हुआ, एग्जिट होके चला गया गैस, बाहर की तरफ एग्जिट चला गया, एग्जिट पे, दिस इज द वेयर पाइप एंड्स, यहाँ पे एग्जिट है। तो H4 क्या हो जाएगा? जो पाइप में फ्लो हो रहा है V स्क्वायर बाय 2g। ये चार माइनर लॉसेस एंड ये वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक, जनरली ये यूज करोगे आप लोग, दैट इज द मेजर लॉस। ये चार माइनर लॉस और एक मेजर माइनर लॉस एंड वन ऑफ द मेजर लॉस को ध्यान में रखोगे, आपसे फ्लो थ्रू पाइप्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको कल एग्जाम में। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ऑल ऑफ यू Yes, गाइस इन sir. दिस क्लास? सब किसी को समझ में Yes, आया? sir. ठीक है, अब जैसे कि एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ यहाँ पे। जिशान तुमने पूछा था ये, दिस इज द वन व्हिच यू आस्क्ड, सर ये सही हुआ है कि नहीं, राइट? So there are two pipes each of 300 meter long are available for connecting to a reservoir, एक reservoir पे कनेक्ट करना है, which a flow of 0.085 meter cube per second, यानी कि Q has been given to you, Q has been given to you as 0.085 meter cube per second, ठीक है, is required. If the diameter of the two pipes are this and this, 0.3 and 0.15 respectively, determine the ratio of head loss when the pipes are connected in series to head loss when they are connected in parallel। ये आता है पाइप कनेक्शन का क्वेश्चन है ये, दिस इज अ कनेक्शन, पाइप कनेक्शन। मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन आज कराऊंगा बुएंसी एंड फ्लोटेशन का, पता नहीं कहाँ गया, काफी ज्यादा जगह ले लिया मैंने यहाँ पे फिर से।
सो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो है बर्न्स इन प्रोटेक्शन का, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आस्तु हैज एवर आस्क्ड, बट सीइंग द नेचर ऑफ टीचिंग दैट यू गाइस गेट इन द कॉलेज, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था आप लोगों से. दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो. ऑलराइट, सो लेट अस सी गाइस व्हाट वी हैव हियर. लैपटॉप चार्ज में रखा, प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार हैंडल करते हैं. ये किसी से हुआ था क्या जिशान? होइছিলে তোমাৰ পৰা এইটো? না স্যার নাই ওইটো नहीं हुआ. रेस्ट ऑफ यू गाइस, एनीवन नॉट फ्रॉम टारगेट एकेडमी, एनीवन? किसी ने सॉल्व करके रखा? 10 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 10 मार्क्स. बताना अगर किसी ने सॉल्व किया तो बताना जब सॉल्व करेंगे अभी. तो लेट्स सी. सो टू पाइप्स ईच ऑफ 300 मीटर लॉन्ग, ऐसे से है. The diameter of the two pipes are 0.3 and 0.15 meter respectively. Determine the ratio of head loss when the pipes are connected in series to head loss when they are connected in parallel. क्या होता है अब पाइप कनेक्शन, दो अलग अलग पाइप कनेक्शन, जैसे कि पहला डायमीटर ज्यादा है फिर डायमीटर कम हो रहा है जैसे, और नेग्लेक्ट माइनर लॉसेस बोल दिया इसमें, तो सिर्फ हम लोग को मेजर लॉसेस से मतलब है ऑल ऑफ इट. सो मैं इसलिए नाउ इट बिकम्स इजी फॉर अस टू सॉल्व. सो यहाँ पे कनेक्शन ऐसे गए, सीरीज कनेक्शन होगा, सीरीज कनेक्शन ऐसे होगा. तो ये सीरीज हो गया. पहला वाला जो है 0.3 मीटर है डायमीटर, और दूसरा वाला है 0.15 मीटर. टू पाइप्स ईच ऑफ देम, ईच ऑफ 300 मीटर लॉन्ग. 300 मीटर का ये भी है, 300 मीटर का ये भी है. अब जब भी सीरीज कनेक्शन होगा ना, दिस काइंड ऑफ कनेक्शन इज नोन एज सीरीज, एक के बाद एक. तो सीरीज कनेक्शन में क्या होगा कि Q1 एंड Q2 दोनों सेम रहेगा guys. यानी कि पाइप नंबर 1 पाइप नंबर 2 दोनों में Q जो है वो सेम रहेगा, सेम डिस्चार्ज फ्लो होगा guys, अलग अलग डिस्चार्ज नहीं होगा. इट मीन्स A1 V1, तो इसमें फ्लो हो रहा होगा V1, इसमें फ्लो हो रहा होगा V2, विल बी इक्वल टू A2 V2, पहला इक्वेशन. ठीक है ऑल ऑफ यू, एम आई क्लियर गाइस? किसी को डाउट है यहाँ पे? एनीवन? इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन प्लीज गाइस. फिर क्या होता है, हेड लॉस क्या होगा? अब हेड लॉस, टोटल हेड लॉस जो होगा वो हेड लॉस इन पाइप 1 प्लस हेड लॉस इन पाइप 2, दोनों को ऐड करके होगा. टोटल पाइप हेड लॉसेस सेम होगा गाइस, तो टोटल हेड लॉसेस ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो टोटल हेड लॉस ऐड हो जाएगा गाइस. तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, तो वी विल हैव दिस एज 4f, यहाँ पे चलो, तो आई विल हैव 4f डैश L1 V1 स्क्वायर बाय 2g D1 into 2g plus 4f dash L2 V2 square by D2 into 2g. दिस इज व्हाट हेड लॉस. ठीक है भाई, तो हेड लॉस, टोटल हेड लॉस हम लोग को ऐड हो गया. हम लोग को रेशियो यही निकालना है. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द हेड लॉस व्हेन द पाइप्स आर इन कनेक्टेड इन सीरीज टू, यानी कि हेड लॉस इन सीरीज कनेक्शन अपॉन हेड लॉस इन पैरेलल कनेक्शन. ठीक है, नेग्लेक्ट माइनर लॉसेस. क्यों दिया हुआ है आपको, फाइन. तो यहाँ से अगर हेड लॉस इन सीरीज निकालना तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा. अब दोनों को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या डेटा है और क्या क्या डेटा चाहिए. हमारे पास डेटा है L1 है 300 मीटर दोनों है, तो L1 L2 दोनों 300 मीटर है. D1 0.3 मीटर, D2 0.15 मीटर, फाइन. 2G, G इज 9.81 एज ऑफ नाउ वी नोन. और F का वैल्यू नहीं चाहिए, F डैश का वैल्यू दोनों पाइप का मान लेते सेम है. इट मीन्स F डैश 1 इज इक्वल टू F डैश 2. अगर नहीं दिया हुआ है तो लेट हम लोग मान सकते हैं इसको. दोनों पाइप सेम मटेरियल का है तो दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम होगा. यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं, अगर अगर यहाँ पे इन लोगों को मेंशन कर देना चाहिए था. इफ दे हैव नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, दे शुड हैव मेंशन टू पाइप्स ऑफ द सेम मटेरियल. सेम मटेरियल बोलते साथ F1 डैश और F2 डैश सेम हो जाता है. तो चलो F डैश सेम हो जाएगा. एफ डैश दिया नहीं हुआ एनीवेज. जब ऊपर ऊपर भी सीरीज में भी एफ डैश कहीं होगा, नीचे भी एफ डैश होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत है भी नहीं वैसे. और D1 का वैल्यू 0.3, D2 का वैल्यू 0.15. सॉरी, वेरी सॉरी. तो यहाँ पे हेड लॉस निकाल लेंगे. यहाँ पे अब हेड लॉस निकालने के लिए हम लोग को V1 और V2 की जरूरत है. तो V1 और V2 हम लोग को डिस्चार्ज तो 0.085 दिया हुआ है guys, देख लो.
वी हैव बीन गिवन द डिस्चार्ज, तो एरिया A1 V1 करके हम लोग V1 V2 निकाल लेंगे गाइस। सो A1 V1 इज इक्वल टू 0.085, एरिया A1 पाई इंटू 0.3 का स्क्वायर बाई 4 V1 आई डोंट नो 0.085। सो यहाँ से V1 का वैल्यू निकल के आएगा आपके पास, तो यहाँ से V1 निकला, कुछ निकलेगा, आप लोग खुद से सॉल्व करोगे, मैं अभी सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आंसर्स तो इतना तो कम से कम आप लोग कर ही सकते हो। तो यहाँ से जब वेलोसिटी निकालोगे वो आप निकालना, वो मीटर पर सेकंड में रहेगा आपका। 0.3 ले रहे हो, सब कुछ ऐसा यूनिट में ले रहे हो, तो V1 मिलेगा। देन A2 V2 इज इक्वल टू 0.085 आएगा। सो पाई इंटू 0.15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू V2 आई डोंट नो 0.085। फ्रॉम हियर also you can find out V2 which will also be available for you in meter per second. Am I clear to all of you guys? All of you? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. V1 को उठा के यहाँ पुट करो, V2 को उठा के यहाँ पुट करो, हेड लॉस इन सीरीज निकाल लो, एफ डैश के टर्म्स में निकल के आएगा गाइस। हाँ, बाकी सब नोन है, यू विल हैव एफ डैश कॉमन निकाल लेना, इसको ऐसे देखो, एफ डैश कॉमन निकालोगे तो यू विल हैव 4f L1, सॉरी 4f के लिखने की क्या जरूरत है फिर, 4L1, तो L भी कॉमन निकाल लो बाहर, पाइप का सेम है, L बाहर आ गया, तो 4V1 स्क्वायर बाई 2G भी बाहर निकाल दो, तो हमारे पास आ जाएगा 4V1 स्क्वायर बाई T1। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ये होगा ना, L कॉमन 2G कॉमन बाहर आ गया, प्लस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 भी कॉमन निकाल लो, चलो लेट अस सी, तो आई विल हैव दिस एज V2 स्क्वायर बाई D2। एनीवन एनी डाउट? 4FL बाहर, 2G बाहर, D1 D2, यहाँ से V1 और V निकालो और एक साथ इसको एज इट इज रहने देना, कैलकुलेशन मत करने जाना है। L भी ऊपर 300 है, बाद में कहीं ना कहीं रेशियो लोगे तो कैंसिल आउट हो गई, इसलिए जस्ट फाइंड इट आउट दिस वन, सिंपल सा बात है। सो यू विल गेट, इसको वैल्यू निकालो, कीप दिस इन टर्म्स ऑफ 4F' L बाई 2G इनटू समथिंग जो आप कैलकुलेट करके रखोगे। तो ये तो हो गया आपका सीरीज कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन जब होगा, वेन एवर द पाइप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ऐसे कनेक्टेड होगा वैसे, यहाँ से दोनों पाइप का लेंथ सेम है गैस, तो यहाँ से आया, लेकिन दोनों का डायमीटर अलग अलग है, ये अटेंशन। हाँ, तो दोनों का डायमीटर ऐसे होगा, ठीक, ऐसे गैस, एक 15, एक जो है वो 15.15 मीटर का है डायमीटर, और एक जो है 0.30 मीटर का डायमीटर है, 0.1 और 0.2 यहाँ पे सेम। इस केस में क्या होता है कि जो डिस्चार्ज है वो बढ़ जाता है, दिस इज पाइप 1, दिस इज पाइप 2, सिंस फ्लो इसमें V1, इसमें फ्लो V2, सो इन दिस केस टोटल डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू 0.085 विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? किसी को कोई डाउट है? इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले क्या था कि डिस्चार्ज सेम होता था और हेड लॉस प्लस हो जाता था, इसमें डिस्चार्ज प्लस हो जाएगा और हेड लॉस सेम हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट, स्टार्क ऑपोजिट। सो हेड लॉस इन 1 इज इक्वल टू हेड लॉस इन 2, बिकॉज हेड लॉस होता है एनर्जी के फॉर्म में भी, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यहाँ जितना एनर्जी होगा उतना एनर्जी यहाँ भी होना चाहिए ना, कंजर्व्ड। ऐसा नहीं है कि इसमें हेड लॉस ज्यादा हो गया इसमें कम हुआ, तो यहाँ पे एनर्जी अनबैलेंस हो जाएगा जब फ्लो होके ऐसे जब फ्लो हो रहा है। ठीक है, so energy at A and energy at B should be same. Hence, head loss in 1 and head loss in 2 should be same. So I'll have this as 4F dash L V1 square by D1 into 2G. So हम लोगों ने 2 किसको माना था? 0.15 को माना था ना? तो ये V2 मान लो, इसको V1 मान लो, मतलब ये V1, ये 1, ये पाइप नंबर 2। ठीक है, पहले भी ऐसे ही था सीरीज में, 1 के बाद 2 था, 0.3 के बाद ये। फिर हमारे पास HL2 क्या आ जाएगा, I'll have 4F dash L V2 square by D2 into 2G। तो 2 is 0.15, this is V2, ठीक से देख देता हूँ, तो दिस इज फ्लो होगा ऐसे करके, तो V2, ये पाइप ऐसे आएगा V1,
दिस इज d2, दिस इज d1। तो ऐसे करके हो रहा है, फाइन। और दोनों का लेंथ तो सेम ही होगा गाइस, लेंथ 300 300 सेम। 4f dash खत्म, 2g खत्म। I'll left out with v1 square by d1 is equal to v2 square by d2। तो v1 square as it is equal to ये आपका d1 is 0.3, v2 square 0.15, तो ये कैंसिल होके 2। So I'll have v1 is equal to 2 v2 square। Am I clear all of you? ठीक है, तो ये हुआ। तो दिस इज वन रिलेशन। हम लोग को v1 का वैल्यू चाहिए पैरेलल में भी, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल। अब q को यूज करो तो 0.085 इज इक्वल टू q1 क्या होगा, a1 v1, a1 v1 प्लस a2 v2, a2 v2। अब v1 की जगह v1 स्क्वायर है गाइस, हाँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, वी कैन फाइंड इट आउट। a1 एरिया a1 a2 निकाल के इसमें v1 की जगह v2 पुट कर दो, रूट टू v2। सो v1 इज इक्वल टू रूट टू v2। तो v1 की जगह आप लोग क्या कर दो, a1 रूट टू v2 प्लस a2 v2। सो यहाँ से 0.085 आएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी विल हैव v2 कॉमन। तो आई विल हैव a1 रूट टू प्लस a2 विल बी इक्वल टू 0.085। यहाँ से v2 का वैल्यू आ जाएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट v2। जब v2 का वैल्यू आ गया आपके पास, देन क्या करना, क्या है, कोई भी एक ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो, हेड लॉस तो दोनों में सेम है। सो इन दैट केस हेड लॉस इन पैरेलल विल बी इक्वल टू v2 आया ना, तो 4f डैश l v2 स्क्वायर बाय d2 इंटू 2g। काम खत्म। तो f डैश रहने दो, l रहने दो, v2 का जो वैल्यू आएगा उसको रहने दो, 2g भी कॉमन निकालो, तो l जस्ट f4f डैश l बाय 2g कॉमन निकाल लो, v2 का वैल्यू जो आया होगा v2 स्क्वायर बाय d2 रहने दो। फिर दोनों को क्या करो, ये कर दो, v2 स्क्वायर बाय 2d। तो ये क्या है, एच एल सीरीज अपॉन एच एल पैरेलल इज इक्वल टू, ऊपर भी क्या था 4f डैश l बाय 2g, ऊपर क्या हुआ v1 स्क्वायर बाय d1 था सर, देख लो ऊपर था v1 स्क्वायर बाय d1 और v2 स्क्वायर बाय d2। तो v1 स्क्वायर बाय d1 प्लस v2 स्क्वायर बाय d2, और नीचे आ गया 4f डैश l बाय 2g, आ गया v2 स्क्वायर बाय d2। दोनों में वेलोसिटी, अब यहाँ पे वेलोसिटी अलग अलग होगा, v2 का यहाँ पे पैरेलल में जो वेलोसिटी होगा उसमें वहां पे वेलोसिटी जरूरी नहीं वैसा होगा क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसलिए मिस्टेक मत करना, v2 इज पैरेलल, ये पैरेलल के लिए है, इसे कैंसिल आउट मत कर देना। तो दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, बच गया क्या, समथिंग लाइक दिस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा आपका पर्टिकुलर आंसर होगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू, जिशान गम पाइसा कोड मिस्टेक করেছিল, স্যার এনেকৈ কৰিছোঁ, এনেকৈ কৰিছা, ঠিক আছে, এইটো কমন লৈ পিনে, য়েছ স্যার 44 আহিছে আনসার। ঠিক আছে, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू गाइस, रेस्ट ऑफ यू आपको समझ में आया क्या हो रहा है, ऑल ऑफ यू गाइस, रेस्ट ऑफ यू इन दिस क्लास, आस्टू स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे हैं यार, यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन गाइस, एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन। क्या करेंगे इसमें, इसका क्वेश्चन जो है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आस्तु को नहीं देना चाहिए बट चलो कोई बात नहीं। A solid cylinder is is to be 0.25 meter in diameter, ठीक है भाई, ये लास्ट क्वेश्चन अभी के लिए। The base of axial length 25 mm is to be of the base of axial length 25 mm is to be of metal, ये metal का होना चाहिए, which has a specific gravity of 7 and the remainder of a material जिसका specific gravity 0.5। दो अलग अलग मटेरियल को सेम सिलेंडर में डाला हुआ है लेकिन मिक्स करके नहीं है, होमोजेनियस नहीं है, अलग अलग। फाइंड द मैक्सिमम overall length of the cylinder in order that it may float in water in stable equilibrium with its axis vertical। है ना क्लियर, एक्सिस वर्टिकल होगा तो सिलेंडर भाई ऐसे होगा ना, ऑल ऑफ यू।
गेटिंग अ पॉइंट गाइस? ऐसे होगा सिलेंडर। सिलेंडर का लेंथ, ओवरऑल लेंथ ये है, ठीक है भाई। और इसके नीचे जो है एक मेटेलिक सिलेंडर लगा हुआ है, दिस इज मेटल। और उसके ऊपर, और वो मेटल का लेंथ जो है, एक्सियल लेंथ 25 mm का है, और ये डायमीटर जो है 0.25 मीटर इन डायमीटर है guys, ठीक है फाइन। ये लेंथ पता नहीं है, यही तो निकालना है हम लोग को, यू हैव टू फाइंड आउट दिस लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कितना होगा। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस सो फार? एनी डाउट? यहाँ पे इसका ये है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 7 है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा क्वेश्चन। टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस दे हैव गिवन टू यू गाइस। फिर क्या करोगे यहाँ पे? तो रेडियस रेडियस जो निकालना निकालना, हम लोग को क्या करना है, फाइंड द लेंथ फॉर विच द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है गाइस? हम लोग, मैंने आपको बताया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम करने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये बॉडी ऐसे, और ये फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, इसमें जी यहाँ पे और बी यहाँ पे, ठीक है गाइस, जी और बी यहाँ पे। तो बॉडी में, बॉडी को थोड़ा टिल्ट कर दो आप, यू जस्ट टिल्ट इट अ बिट, क्लॉकवाइज रोटेशन दे दिया आपने, तो इधर से पानी से बाहर आया, इधर पानी में चला गया, तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ बुएंसी जो है वो शिफ्ट कर जाएगा इधर, दिस वाज बी, एकदम पैरेलली शिफ्ट हो जाएगा ए बी डैश, ठीक है। और यहाँ पे जी था, तो जी अपने जगह से हटता नहीं है गाइस, फाइन। तो ये, दिस इज द line connecting B and G, and this is the line connecting B and G. अब इक्विलिब्रियम, ये देखो आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा है, अब फोर्स ऑफ बुएंसी जो है भाई नीचे यहाँ लगने लगा, पहले यहाँ था, फोर्स ऑफ बुएंसी यहाँ, वेट यहाँ, तो वेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बुएंसी। अब फोर्स ऑफ बुएंसी यहाँ पे लग रहा है, वेट तो यहाँ लग रहा है, अब ये दोनों को देखो तो दिस इज वेट एंड दिस इज फोर्स ऑफ बुएंसी, दोनों सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। अब एक सेंटर के अबाउट देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे लाना चाहता है, ये इसको ऊपर घुमाना चाहता है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सो ये फोर्स ऑफ बुएंसी का जो लाइन है वो जहां जाके मीट करेगा, दैट इज कॉल्ड एम। अगर मेटा सेंटर एम इज अबव बी एन जी, तो ऐसे केसेस में बोलते हैं दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इट मींस मेटासेंट्रिक हाइट जो जीएम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। सो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो कंसेप्ट यही है, मैं आपको अप्रोच समझा रहा हूँ। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम जीएम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है फाइन। अब क्या, जीएम का रिलेशन क्या होता है, इट इज आई बाई वी बार माइनस व्हाट, बीजी होता है ना गाइस, डू यू रिमेंबर दिस? Yes, sir. ठीक है, तो जीएम क्या होगा, बीएम माइनस बीजी, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी से सॉल्व होगा। आई क्या है, आई इज द, I is the sorry, I is the area moment of inertia of the section that is in touch with the liquid या फिर water में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ तक पानी है, यहाँ तक सबमर्ज्ड है, आई डोंट नो हाउ मच सबमर्ज्ड इट इज दिस, यहाँ तक है। तो जहाँ पे सबमर्ज्ड है, फ्री सरफेस इसके साथ कैसा बना रहा होगा, सर्कल ही होगा सेम डायमीटर का। तो आई ऑफ आई फॉर ए सर्कल इज इक्वल टू पाई डी टू द पावर 4 बाई 64, फाइन, डायमीटर आपको दिया हुआ। वी बार, दिस इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है ना गाइस, दिशा मना से वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, या यू Yes, कैन sir. से वॉल्यूम सबमर्ज्ड, कितना वॉल्यूम अंदर है पानी में। और बीजी इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड जी, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम लोग, लेट अस सी। सबसे अच्छा तरीका, आपको 25 तो दिया हुआ है भाई, ठीक है, 25 यहाँ तक है, दिस इज एल माइनस 25 है ना गाइस, दिस इज एल, टोटल एल माइनस 25 है।
अब क्या करेंगे हम लोग को निकालना है आई, तो समझ में आ जाएगा क्योंकि हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है। वी वॉल्यूम सबमर्ज्ड, और बीजी का वैल्यू निकालना है, वेरी इंपॉर्टेंट। यही तो निकालने में बैंड बच जाएगा इस क्वेश्चन में। क्या है? तो पहला हम लोग करते हैं, देखो हम लोग को डेंसिटी ऑफ दिस मेटल दिया हुआ है, मटेरियल। सो डेंसिटी ऑफ द मेटल जो है वो 7000 हो जाएगा, बिकॉज 7 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, 7000 kg पर मीटर क्यूब। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास तो निकल जाएगा इस, मास ऑफ द मेटेलिक पार्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मेटेलिक पार्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक पार्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक पार्ट कैसे निकालोगे? डेंसिटी इज 7000, वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक पार्ट पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू जितना हाइट का या जितना लेंथ का है। तो लेंथ कितना है? 25 mm, तो आई कैन राइट डाउन 0.025 मीटर। तो यहाँ से मास ऑफ द मेटेलिक पार्ट निकल जाएगा guys। कैसे निकलेगा अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज कैलकुलेट वंस। और डायमीटर इज गिवन टू 0.25 मीटर, तो आई विल हैव दिस एज 4000 into pi into 0.25 का square into 0.025 divided by 4. So I'll have this as 7000 into pi into 0.25 का square into 0.025 divided by 4. 8.59 kg. Am I clear? आ रहा है guys all of you? 8.59 Yes, sir. 8.6 kg ले लिया मैंने, मास ऑफ द मेटेलिक पार्ट। इसको मैं m1 मान लेता हूँ। ठीक है भाई। अब इसका ऊपर वाला मटेरियल, तो ऊपर वाला जो मटेरियल है मास ऑफ द m2, उसमें क्या होगा? उसका डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल इनटू वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल। सो ये अपर पार्ट डेंसिटी आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5 दिया हुआ है, देख लो। तो 0.5 होगा तो डेंसिटी 500 होगा, 500 इनटू ये कितना होगा v2 का वैल्यू पाई, तो डी स्क्वायर बाय 4 तो सेम हो जाएगा, लेंथ अलग हो जाएगा ना। नाउ इट विल बी लेंथ l माइनस कितना 0.025, लेंथ मीटर में ले रहा हूँ मैं। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? m2 इज इट क्लियर गाइस? अभी l पता ही नहीं है हम लोग को, पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो आप। तो यू विल हैव 500 इंटू सिर्फ पाई इंटू 0.25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 अगर करते हो आप, तो यू गेट दिस एज 24.54, 24.54 m2 l minus 0.025। Am I clear all of you? 24.54 है, sorry guys, 24.54, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। m2 ये आ गया मास, l के टर्म्स में आ रहा है देखो, क्योंकि हमारे पास लेंथ है ही नहीं, सिर्फ ये दिया हुआ था 25 में। 25 में बेस ऑफ द एक्सियल लेंथ इज ऑफ मेटल, ये मेटल वाला पार्ट तो हमारे पास 25 में दिया हुआ। तब क्या करेंगे हम लोग को पूरा मटेरियल का जी निकाल लेना है, यानी कि सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड हम लोग मेजर करेंगे यहाँ से, वी ऑलवेज मेजर सेंट्रॉइड फ्रॉम द बेस। हम लोग हमेशा से बेस से मेजर करेंगे कि भाई जी होगा तो होगा कहाँ, ऐसे। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ध्यान से देखना, जी मेजर करने का तरीका जो है सी जी, या फिर डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड दिस, तो जी या फिर वाई जी लिख देता हूँ मैं, डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में मेजर करना। तो इसको मेजर करने का जानते हो कैसा तरीका है? m1 मास m1 इनटू इट्स ओन सेंट्रोइड। 25 mm का सेंट्रोइड कहाँ होगा? 25/2। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? 0.025/2 m1 इनटू इट्स ओन सेंट्रोइड, m1 cg1 प्लस m2 cg2, ऐसे होगा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, टोटल मास। तो टोटल मास आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी टिपिकल, वेरी वेरी टिपिकल गाइस। प्लस मास m2 जो होगा ये m2 आप निकालोगे गाइस, अभी तो m1 निकाल लिया था, तो ठीक है। m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? m2 अभी थोड़ा देर पहले लिखा था आपने, और उसका डिस्टेंस क्या है? l-25, तो l-25/2। तो इसको अगर हम लोग इसमें ले लेते हैं गाइस, लेट अस सी,
हमारे पास L माइनस 0.025, ठीक है, बाई 2। तो हमारा सीजी ऑफ इसका भी आ गया guys। तो अलग अलग पार्ट का अलग अलग सीजी है, ये निकालने का सीजी निकालने, इसका सीजी ऐसे, इसका सीजी कितना डिस्टेंस पे, इसका सीजी कितना डिस्टेंस, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ से आपको yg जो मिलेगा आपको L के टर्म्स में मिलेगा, देख लो, m1 m2 भी L में है। So I have this. So m1 is given to you as 8 point, not given, you have determined 0.6 into 0.025 divided by 2 plus m2 will be equal to 25.4, 24.54 L minus 0.025 divided by 2 divided by 8.6 plus 24.54 into L minus 0.025, ऐसे होगा guys ये yg। दिस इज सेंट्रॉइड डिस्टेंस ऑफ यहाँ से लेके यहाँ तक। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट होगा तो प्लीज बताओ, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। अब क्या करेंगे गाइस, इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो, क्या करेंगे अब यहाँ पे, अभी हम लोग को बी निकालना है, बी। तो यानी कि हाइट, हाइट सबमर्ज्ड या फिर एच डी निकालना पड़ेगा हमको, कितना एच डी सबमर्ज्ड है। तो कैसे निकालेंगे ऑल ऑफ यू, ध्यान से सुनना। ये जो बॉडी जब ऐसे, बॉडी जब फ्लोट करता है ना, तो इसमें जी पे इसका सेंट्रोइड, जो सेंट्रोइड अभी थोड़ा देर पहले इतना निकाला हम लोगों ने, इस पे वेट लगेगा और नीचे लगेगा फोर्स ऑफ बुएंसी एफ बी। तो वेट विल बी इक्वल टू फोर्स ऑफ बुएंसी। वेट कितना हो जाएगा, एम जी, टोटल, टोटल मास। तो टोटल मास करोगे तो m1 प्लस m2 करना पड़ेगा, प्लस एफ बी। एफ बी क्या होता है, एफ बी इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। लिक्विड यहाँ तक ऐसे देखो, यहाँ तक सबमर्ज्ड है, ये सिलेंडर का जो एरिया आएगा इतना, दिस इज पानी, यहाँ पे पानी है। तो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा वाटर, जितना जितना वॉल्यूम पानी के अंदर होगा, कितना वॉल्यूम पानी के अंदर है, तो फोर्स इज इक्वल टू एफ बी जो हो जाएगा, दैट विल बी वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। तो टोटल मास तो रहने देते हैं एक बार, तो दोनों तरफ से जी जी कैंसिल हो जाएगा। एम एल मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू mass of the liquid displaced will be equal to density of water into pi d square by 4 into ये जो हाइट दिया हुआ है दैट इज एच डी। फिर एम टी का वैल्यू, एम टी का वैल्यू में आपको दोनों लिखना पड़ेगा। टोटल मास इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 8.6 प्लस 24.54 एल माइनस 0.025। एक क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 पाई इंटू 0.25 का स्क्वायर बाय 4 इंटू एच डी। अब आपको यहाँ से जब ये करोगे, आप ये वैल्यूज निकालोगे, तो यहाँ से एच डी का वैल्यू भी आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एल। तो यहाँ पे जी भी आपको एल टर्म्स में मिला, जी मिला ना, देखो 8 पॉइंट ये मिला, फिर बी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एल, फिर वाई जी माइनस वाई बी करोगे आप, वाई बी करोगे तब आपको बी जी मिलेगा। उसको उठा के वो इक्वेशन में पुट करोगे, और आई बाय वी बार वॉल्यूम डिस्प्लेस और वॉल्यूम सबमर्ज्ड, वो तो इतना है guys। तो एच डी, यहाँ से जब एच डी मिलेगा ना, तो एच डी इज दिस मच, तो यानी कि वाई बी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बुएंसी, यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ बुएंसी है ना guys, यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाई बी हो गया। तो वाई बी विल बी इक्वल टू एच डी बाई टू, एच डी बाई टू। फिर जी जो है अभी थोड़ा देर पहले निकाला था आपने, तो यहाँ से वाई जी मिला, तो वाई जी वाई बी, तो वाई जी माइनस वाई बी करोगे तो you'll गेट जी बी। अब जी बी का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो, या बी जी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो। आई का वैल्यू पाई डी स्क्वायर बाय 4, पाई डी टू द पावर 4 बाय 64, और वॉल्यूम सबमर्ज्ड कितना है, जो इतना, दिस इज वॉल्यूम सबमर्ज्ड, एच डी का वैल्यू। फिर उठा के इसको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा लेंथ के टर्म्स में, उसको सॉल्व करोगे, उसका रूट्स निकालोगे, तो कोई रूट्स निगेटिव आएगा, कोई रूट्स पॉजिटिव आएगा, जो पॉजिटिव होगा वो आंसर होगा गाइस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। सच बोलना, हाँ सच सच, आई वांट टू हियर ऑनेस्ट आंसर, सच कि समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन बेसिकली आपको नहीं देना चाहिए एग्जाम में, लेकिन हाँ यहाँ से कम एक कंसेप्ट तो क्लियर हुआ आप लोग का रिवीजन में,
कि ये चीज तो फॉलो किया जाएगा। तो कभी ये तो क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया, उन्होंने देखा नहीं होगा। यस ऑब्वियसली, देखा होता तो आप लोग का हालत खराब नहीं होता। तो अगर उन्होंने देखा होता तो ये क्वेश्चन कभी नहीं देते। दिस क्वेश्चन इज फार मोर एनालिटिकल टू बी गिवन टू द एग्जामिनेशन। 10 मार्क्स का दिया था, दिस इज मोर देन 10 मार्क्स। मैं रहता अगर प्रोफेसर तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन देता आपको ये, अगर देता भी तो, कि भाई करके देखो। लेकिन हाँ चलो, इससे क्या हो रहा है कि जब भी आपको कभी भी कोई भी मटेरियल या बॉडी दिया हुआ है, इफ द बॉडी इज गिवन टू यू, तो उसका जी और बी निकालना आसान होगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी फ्लोटिंग बॉडीज का इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए या मेटासेंट्रिक हाइट निकालने बोलेगा तो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ जी एंड वैल्यू ऑफ बी विल बी इजी टू फाइंड, बिकॉज वो आपको एक सिमेट्रिक बॉडी देगा, चाहे क्यूबॉइड देगा या ये देगा ऐसे करके, ऐसे देगा, सिलेंडर देगा जिसका यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा थ्रू आउट, उसका जी आराम से आप निकाल सकते हो, अलग अलग मासेस नहीं होगा। फाइन, तब क्या हो जाएगा, वहां से जी निकालना आसान है। अगर लेंथ ऑफ द सिलेंडर 300 mm दिया हुआ है तो जी क्या हो जाएगा, 150 mm पे हो जाएगा। फिर बी, तो सिलेंडर कितना डिस्प्लेस्ड है वो कैसे निकालोगे। ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द सिलेंडर या हाइट ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड, यानी कि द लेंथ ऑफ द बॉडी अंडर वाटर कितना है, तब क्या करोगे कि वेट जो है बॉडी का जो वेट है दैट इज बैलेंस्ड बाय बुएंट फोर्स। तो वेट ऑफ द बॉडी इज एम जी। फाइन, तो रो इंटू वी इंटू जी। रो किसका, बॉडी का। फोर्स ऑफ बुएंसी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, तो मास ऑफ द लिक्विड इंटू डेंसिटी, मास ऑफ द लिक्विड इंटू जी, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, जी जी कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा, जितना वॉल्यूम किसका होगा, बॉडी का अंदर होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, मान लो सिलेंडर है तो सिलेंडर इज अंडर वाटर, तो ये डिस्टेंस एच डी मान लो। तो मास कितना, मास ऑफ द लिक्विड क्या होगा कि जो लिक्विड है उसका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच डी। तो यहाँ से एच डी आप आराम से निकाल सकते हो, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट एच डी इजिली फ्रॉम हेयर, क्योंकि रो बी रो एल दिया हुआ रहेगा, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पूरा दिया हुआ रहेगा गैस। तो रो बी इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, पूरा लेंथ दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग को रो एल पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एच डी ऐसे दिया हुआ था गैस। पाई डी स्क्वायर बाय 4 पाई डी स्क्वायर बाय 4 खत्म। रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1000, आपको वाटर होगा तो 1000 होगा, लेके चलो आपको एच डी मिल जाएगा। सिंस यू विल नो एच डी, इतना डिस्टेंस पे एच डी है, तो बी निकालने के लिए क्या करोगे, एच डी बाई 2 कर दोगे। सेंटर ऑफ बुएंसी यानी कि वाई बी विल बी इक्वल टू एच डी बाई 2। तो एच जी मिल गया, वाई जी मिल गया 150 mm पे, तो वाई बी मिल गया, तो बी जी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बी एंड जी, तो दिस दिस पूरा माइनस दिस, आप आराम से कर सकते हो, वाई जी माइनस वाई जी। ये काम आएगा गाइज, आप लोग को न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है कल, 10 मार्क्स का इजी क्वेश्चन आएगा, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम मेरे को लग रहा है ऐसे 10 मार्क्स का। Alright guys, this will be enough for today. Whatever doubt you might have in the coming time, please message karna. If I'm in the best of my health, I'll help you guys. All of it. I'll see you in the next class guys. So then take care. All the best for tomorrow.